Good morning students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Bal Bharati Standard 6. So students, take out your textbook. Today we are going to start new chapter, chapter number 2.4, Anak Krakatoa. Okay, so in this chapter we are going to see about what is volcano, how volcanic eruption occurs, कैसे होता है ये volcanic eruption और उसके effects क्या होते हैं. So all these are we are going to see in this chapter. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. So Krakatoa, it is an island that is in Indonesia between the Java and Sumatra. Okay, in Sunda Strait. It is known for its volcano which erupts regularly. So Krakatoa जो island है वो अपने volcanic eruption के कारण जाना जाता है क्योंकि वहाँ बार बार volcanic eruption होते हैं. Now what is volcano? आपने सुना होगा ये volcano होता है क्या है, हिंदी में जिसे कहते हैं ज्वालामुखी. So it is an crack or opening in the earth crust. हमारी जो earth crust है उसके ऊपर cracks आ जाते हैं. ओके और उस क्रैक से क्या बाहर निकलता है, हॉट मोल्टेन रॉक और लावा. ठीक है, दैट इज इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के सेंटर में हॉट मोल्टेन रॉक और लावा जो होता है वो ऐसे समय पर उस क्रैक से बाहर निकल के आता है और उसे कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन. So there is a hot molten rock near the earth center. Sometime it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When these happens, we say that the volcano has erupted. Understood? A volcanic eruption happens on a tremendous scale. और ये जो volcanic eruption होता है वो tremendous scale पे होता है, means बहुत ज़्यादा मात्रा में. Thick dark clouds of smoke rise high from the opening and spread in the sky. So इसमें से जो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, thick dark clouds that is of smoke that also comes out from that crack and spread into the sky. Big glowing burning chunks of rock and red hot lava thrown out from the crack in the earth. और इसमें से और क्या बाहर निकलता है, big glowing chunks of rock. Chunks means pieces of rocks and that are thrown out of the crack, and also with that very hot mud and ash are also come out from that crack. Okay, a great volcanic eruption can change the landforms in an area. और ये volcanic eruption के कारण landforms में भी changes आते हैं उस particular area में. Understood? Volcanoes are popularly classified into 3 categories. So ये volcanoes को 3 categories में बांटा गया है. First is active volcanoes. What is active volcanoes? Active means those volcanoes which erupt regularly and they are active. They are called as active volcanoes. Second is dormant volcanoes. What do you mean by dormant volcanoes? Means those volcanoes which are inactive or in a deep sleep. They are called as dormant volcanoes. हमें इसकी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से मिल सकती है, मीन्स इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हिस्ट्री में उसमें पूरी जानकारी हमें वहाँ से मिल सकती है, ऐसे वोल्केनोज. बट नाउ दे आर क्वाइट, मीन्स दे अकर after a long period of time, but now they are quite sleep, so that's why they are called as dormant volcanoes. Now next is the extinct volcanoes. ऐसे volcanoes जो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं होते. ठीक है, वैसे volcanoes को क्या कहा जाता है, extinct volcanoes. मीन्स हिस्ट्री में भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जो जोग्राफर्स हैं वो देख के बता सकते हैं कि हाँ इस एरिया में volcanic eruption हुआ था, उनके रॉक्स वगैरह को देख के, लेकिन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी कोई भी जानकारी हिस्ट्री में मौजूद नहीं है. एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी इरप्ट अगेन. और अब वो वैसे वॉल्केनिक इरप्शन अब होते भी नहीं हैं. सो उन थर्ड कैटेगरी में उसको रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जो अब लुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं. Krakatoa is an active volcano. तो Krakatoa जो है वो क्या है, एक्टिव volcano है. It has erupted many times causing great disaster. और वो कई बार erupt होता है कई disaster के साथ, जिसमें कई सारा नुकसान होता है. The worst of the eruption took place in August 1883. और सबसे बुरा जो eruption हुआ था वो कब हुआ था, in 1883.
1883 जिसमें बहुत भारी मात्रा में इरप्शन हुआ था। The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 किलोमीटर away in Australia। और ये इतनी लाउड साउंड के साथ ये इरप्शन हुआ था इन 1883 दैट उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ तक गई थी? ऑस्ट्रेलिया तक। मीन्स उसके दूर पे जो पड़ता है, जो कंट्री है जो कि 3005 किलोमीटर अवे है, तो वहाँ तक उसका साउंड गया था। इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे लाउडेस्ट साउंड था जो इंसान ने अभी तक सुना था वॉल्केनिक इरप्शन का। द आइलैंड विच वॉज अ वॉल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। सो जो आइलैंड था उसमें जो वॉल्केनिक माउंटेन था वो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो खुद ही इरप्ट हो गया था, कोलैप्स्ड हो गया था। द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई। और उसमें से जो डस्ट निकली थी वो वॉल्केनिक इरप्शन के समय वो 80 किलोमीटर तक फैली थी इन द स्काई। It spread in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometers away. So ये जो डस्ट है स्काई में जो स्प्रेड हुई थी तो वो अलग अलग जगह फैल गई थी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, और नाउ दे गेट सेटल्ड, और उसके बाद वो अलग अलग जगह पे सेटल्ड हो चुकी थी। दैट इज thousands of kilometers away. The eruption caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. So आपको पता है कि इरप्शन के दौरान मीन्स उसके कारण जाइंट वेव्स क्रिएट होती है जिसके कारण सुनामी आती है, ठीक है। सो नियर द आइलैंड, तो उस समय ये जो भारी इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसके कारण भी सुनामी आई थी, ठीक है। About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis. और कितने villages का नुकसान हुआ था? 165 villages were destroyed due to that tsunamis that were created by due to what? By that volcanic eruption that happened in 1883. तो सोचिए कितना नुकसान हुआ था। तो इससे पता चलता है कि उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण कितना नुकसान हुआ था। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्राकाटुआ। सो वो इरप्शन के कारण क्राकाटुआ का जो आइलैंड था वो कितना डिस्ट्रॉय हुआ था? अबाउट द 2/3 पार्ट। इट कोलैप्स्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रैटर और होल। और उसके कारण, उस इरप्शन के कारण बीनीथ द सर्फेस ऑफ द सी उसमें भी होल क्रिएट हुआ था। क्रैटर मीन्स ओपनिंग और होल, ठीक है। सो वो इरप्शन इतना बड़ा था, इतना ह्यूज था कि उसके कारण अंडर द आइलैंड दैट क्रिएट अ होल और क्रैटर। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड, और उसकी विड्थ कितनी थी? 6 किलोमीटर, ओके। देन इन 1927 अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रैटर। देन इन अगेन 1927 in that particular area again another volcanic eruption happened. Plume means a long cloud of smoke. फिर से उसमें बहुत बड़ा क्लाउड जो है दिखाई दिया, स्मोक के साथ वो बाहर निकला, यानी 1927 में फिर से वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन। अ फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वॉल्केनो ब्रोक वाटर। हाउ डिड इट हैपन? सो उसके बाद क्या दिखाई दिया कि उस इरप्शन के बाद फिर से एक इरप्शन आया, और जिसके बाद मीन्स वाटर में छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं? वाई डिड इट हैपन? वाई द अदर आइलैंड्स कैन बी सीन दैट ब्रोक आउट ऑफ द वाटर? पानी में ऊपर की तरफ निकले हुए छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई दिए, ऐसा क्यों? When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by the sea water. So जब volcanic eruption होता है तो that sea water takes away all the things that had erupted. Means जो भी अंदर से लावा या जितनी भी चीज़ें बाहर आई हैं तो sea water जो है अपने साथ बहा के ले जाता है। But then the lava started flowing out of the crater faster. और फिर उतनी ही तेज़ी से और लावा जब बाहर निकल के आता है, this volcanic material was not all taken by the waves. So ये जो पूरा मटेरियल है तो वो पानी का जो बहाव होता है वो पूरी चीज़ों को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। And a new mountain began to grow. So in this way all the lava that comes out from the hole
that all things are not to be taken by the water. So slowly that all the things make or to rise up to form a small mountain. Got it? धीरे धीरे वो जमा होने लगता है और जमा होते होते वहाँ पर ऐसे आपको ये पानी है सपोज, ठीक है, सी वाटर, एंड दिस इज द आइलैंड. सो आफ्टर यू कैन सी स्मॉल अगेन. ओके, ये क्रैकाटोआ है. ठीक है, तो इसके बाद आपको छोटे छोटे आइलैंड और पानी में दिखाई देंगे. ठीक है, पानी के ऊपर उनकी सतह दिखाई देगी. सो दैट इज कॉल्ड एज द चाइल्ड ऑफ द क्रैकाटोआ और द अनक क्रैकाटोआ. इसे ही क्या कहा जाता है और क्या कहा गया? अनक क्रैकाटोआ. Means this is the main island. Okay, this is the main island, but after the eruption, when all the things not taken by the sea and that things formed a new island that is called as the Anak Krakatoa. Got it? It kept growing and was soon seen above the water. तो धीरे धीरे वो लेवल जो लेयर है हॉट मोल्टेन रॉक्स जो हैं, जो लावा बाहर निकलता है, धीरे धीरे वो जमा होते होते ऐसा फॉर्म हो जाता है. ठीक है. Thus a new island grew from the old island of the Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or the child of Krakatoa. Got it? So this is called as the child of the Krakatoa or the Anak Krakatoa island. Understood how this forms? ये है मेन आइलैंड. मेन आइलैंड से इरप्शन होने के बाद उसमें जब होल होता है और इरप्शन होता है, after this hot molten rock that comes out and that not taken by the sea, all the things that get formed as a small island. Understood? So I think you had understood up to this, and the remaining part of this lesson we are going to see in a next class. Got it? Thank you.